Yes, it is. The recording will be started. Okay. Today's lecture is about uh, internal assessments because in the last lecture we did some external assessment and for the organization, and in that lecture we learned that how and what are some external forces are there who can affect negatively or positively, directly or indirectly, on the firms or organizations' decisions, organizations' planning, organizational functions as well. And we saw that many of the external forces are there. So, though we have classified those external forces into five classes, but literally it has so many factors that may or may not be having impact from the outside of the organization. So that's why those factors were called external factors or external forces. Today, we are here to analyze some internal assessment of the organization. It means that uh, uh, internally within the organizations, firms has some kind of forces who may have some direct or indirect positive or negative impact on the organizational performance. So internally means that within the organization, the structure we have, the departments we have, the employees we have, this pool of resources that any organization may possess. That pool of resource, directly or indirectly, somewhere, somehow, may have impact on the organizational performance. So that's why, because these factors are coming within the firm, so to assess those factors are being called the internal assessment. Uh, 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 Here we are having chapter objectives. Obviously, we are going to describe how to perform an internal strategic management audit, and we will discuss the two views about these factors. One is a resource-based review approach, and one is industry organization approach. I'll explain this later on. Then we will discuss the key interrelationship among the functional areas of the business, and then we will going to identify the basic functions or activities that make up management, marketing, finance, accounting, production, operation, research, development, and management areas. So we will see some sort of facts, how these internal functional areas can affect directly or indirectly to the firm's or organization performance. And after that, we will explain how to determine and prioritize the firm internal strategies, weaknesses, and strengths. We will see some sort of financial ratio analysis. Obviously, we will not be going into detail of that financial analysis, but we will definitely have some kind of idea about financial analysis. Then we have to develop internal factor evaluation matrix. We will not be doing this into this chapter, but we will get an idea of this matrix. Okay. Starting from again the strategic management process. Here we have developed the vision and mission of the organization. We have seen the steps or the meaning of the vision and mission of the organization, how those are being established, and then we have studied the external audit, and now we are here to see the internal audit of the organization. Internal audit, obviously we will see all these stuff here, and first of all, I have to explain the resource based view. What is resource based view? I will explain here.
Uh, uh, Basically, there are two views of the organizational performance. If we are talking to, there are two views. One is industrial organizational view, IO analysis, or IO view, that is being called IO view, industry organization view. Regarding industry organization view, as I explained in the last lecture, that the believers believe that the firm performance or organizational performance is being affected by the external forces, like we have seen in the last lecture. We have some economic forces, we have some legal forces, we have some political forces. So IO view explains that these external forces are the key forces which have major impact on the organizational performance, while a resource based view believes that the competitive advantage that internal resources are more important than the external resources for the firm in achieving and sustaining competitive advantage. It means that this resource based view believes that rather focusing on the external opportunities and threats, you must focus more on the internal forces and internal resources, which gives you or which give you uh, a competitive advantage over your competitors. So, resource based view believes that internal forces are more important, who uh, uh, who create competitive advantage over the other firms. So you have to focus more on them rather to having emphasize on the external forces. You must focus on the internal forces. Now, internal forces are basically based on the resources do you have, what kind of resources you have. It makes internally some kind of effect on your performance. Obviously, there are resources internally. Any organization, any department, any project is being blessed with the resources, and the resources may be of these types. It may be physical resources, it may be human resources, it may be organizational resources. Physical resources, they include in the plants, equipment, location, technology, raw material, machines. These are the physical resources which are touchable, which are seeable. And human resources, they include employees, training, experiences, intelligence, knowledge, skill, abilities. And some are the organizational resources, like structure, planning processes, information system, patents, trademarks, copyrights, databases, and so on and so forth. So resource based view theory, RBV theory, asserts that the resources are actually what helps firm exploit opportunities and neutralize threats. So that is why they believe in the resources, because from the outside of the organization, if you are exposed to some threats, if you are exposed to some opportunities, so they're coming from the outer side of the market. Organization has nothing to do with the availability of opportunities and threat by itself. Organization has only should be having the power to achieve and the opportunities. An organization has some powers to avert the threats. So basically, uh, the question is that what is the difference between the competitive advantage and comparative advantage? Okay, comparative advantage is general term. You can compare two entities in any general analysis. You can compare of organization A with the organization B. That is a comparative analysis. Like you may compare your Abbasian University with the Ikra University. You make a comparison of these universities. So that would be a comparative analysis. But
Between these two universities, which university is better than other university? That would be a competitive advantage. Uh, so that would be a competitive analysis and competitive advantage you are seeking to. मिसाल के तौर पर, for example, if you are seeing, if you are keen to have the comparison between Abbasin University and Ikra University, and you found that the Abbasin University is good in somewhat, in some manners, than the Ikra University. So that characteristics which making Abbasin University better, that will be having competitive advantage of the Abbasin University over the Ikra University. Okay, so obviously competitive advantage is a specific characteristics in comparative analysis of the two organization. So that's how we can differentiate between the competitive advantage and comparative advantage is no term is being used. There is a comparative analysis. So in that comparative analysis, you found or you can find competitive advantage. Definitely. If you analyze comparatively, you can find out the competitive advantage of any firm, of any organization. So RBV approach or RBV theory, based view theory, emphasize that you must focus on your internal resources that will help you in entertaining the opportunities or in averting the risks or threats. It means that if you are good in physical resources, if you are good in human resources, if you are good in organizational resources, then the firm is having a strengths. Then the firm or organization is having a strength, so many strengths. What kind of strengths? Those strengths which can entertain opportunities from the market, that is coming from the government side, that is coming from the economic side, that is coming from the market side. So if opportunities are there in the market, so you can win it. You can win in only situation if you are good at physical resources, if you're good at human resources, and if you're good in organization resources. And if you're good in this, it means that you are having competitive advantage over the other firms. But similarly, if you're not good in the resources, if you're not having sufficient physical resources, if you're not having good skills, if you're not having good plans, it means that the organization is said to be weak organization. Weak organization in the sense that the firm or organization is weak firm that cannot entertain the opportunities that is coming out of the market. That firm is weak in the sense that they cannot treat the threat that is coming from the market. So it means that internally firm, if the firm is having some competitive advantage over to the other firms, it means that it will be establishing the strengths of the firm, it will be increasing the strengths of the firm. And unfortunately, if the firm or organization does not have sufficient resources, so that insufficiency, that inefficiency will make firm weak or establish the weakness of the firm. So just like external assessment, where we classified external forces into opportunities and threats. Similarly, in internal assessment, internally we can classify the strengths and the weakness of the organization. And again, I'm repeating, what would be the strengths of the organization? Strengths of the organization would be those competitive advantages in physical resources, in human resources, in organizational resources that may create some edge of to the organization over to the competitors. And what will be the weakness? Weakness of the organization would be insufficiency of the physical resources, insufficiency of the human resources, or incompatibility of the organization resources.
So if you are insufficient, you are incompatible, you are incomplete on the resource side, it means that you are a weak organization. And weak in the both, weak obviously we will be taking in both sense. Weak in earning the opportunities, and weak in fighting with the threats. Any question in this slide? Okay, we will move onward. Now, how would we integrate strategy and culture, or because strategy, strategic is, mechanism or strategy is a part of our plan. We have made many of the policies, many of the procedures, that how would we be responsive to the customer, we will be responsive to the stakeholders, we will be responsive to the vendor, to the supplier. So that is our strategic plan. But what is culture? Culture is actually can be defined as a pattern of behavior that has been developed by the organization, and it learns to cope with the problems of external adaptation and internal integration. Now that is making organizational culture. I'm repeating it again. A firm is having internal parts, internal sectors, internal sections, internal departments, internal resources. So are these resources, these departments, these employees, these physical and organizational resources, does have compatibility, that it can achieve or it can adapt external opportunities, they can win the external opportunities, and they can fight with the external threats. So making comparison of these two things, that the external opportunities and threats are waiting for us. So do we have internal strengths to cope up with these external forces or external threats and opportunities? And if we have internal integration or internal sufficient amount of forces, that it can create that it can avail the opportunities, or it can fight with the threats, it means that the strategy and culture has integrated. Strategies and cultures has integrated. It means that, okay, यस मैं सबको म्यूट भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे. Anyway, sir, please explain the previous slide again. This one, I'm repeating it again. Resource based review is an approach which believes that the organization must focus more on the internal resources rather than to emphasize on the external opportunities and threats. इसका मतलब ये है कि एक फर्म को इस इसमें अगर एक फर्म ये सोचती है कि यार मुझे गवर्नमेंट से, मुझे कंज्यूमर से, या मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ये फ़ायदा पहुंच सकता है, मतलब मैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाह रहा हूँ, या एक फर्म ये सोचती है कि यार मुझे वहाँ वहाँ से ख़तरा है, गवर्नमेंट से, बजट से, या कंज्यूमर से या सप्लायर से, मुझे इनसे ख़तरात हैं. तो ख़तरात होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं. Threats are always there, opportunities are always there. Resource based view emphasizes कि आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स बढ़ानी चाहिए, ताकि आप अपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके और उन थ्रेट्स से मुकाबला कर सके. तो रिसोर्स बेस्ड व्यू ये कहती है. अब इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती हैं? इंटरनल स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ सकती हैं कि आपके फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे हों, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हों, और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आपकी अच्छी हों. अगर ये रिसोर्सेज सफिशेंट हैं, कंपैटिबल हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ विन कर सकते हैं और थ्रेट से फाइट कर सकते हैं. तो यही आपको बताया गया और यही आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता है. हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर is made? Organizational culture is made that the people of the organization, employees of the organization, departments of the organization, policies of the organization are that kind of a nature
that these employees, these policies, these departments, these equipment are sufficient to avail or to win the opportunities, or these resources are sufficient to fight with the threat. So if the internal resources are sufficient to fight the threat, are sufficient to entertain or win the opportunity, it means that I am integrating my strategy with the external forces. So that makes a good organizational culture. Organizational culture captures the subtle, elusive, and largely unconscious forces that shape a workplace. मतलब समझने की बात यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो आपकी सिस्टम में ऐसी बिल्ट इन फोर्सेस क्रिएट करती है, बिल्ट इन एक ऐसे बिहेवियर क्रिएट करती है कि आप का एक वर्क प्लेस बनता है। वर्क प्लेस से मुराद आपके लोग जो काम करते हैं उनका मोराल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस देती है उसका एटीट्यूड, और ये जो है दैट रिमार्केबली असिस्ट टू चेंज कल्चर कैन रिप्रेजेंट द मेजर स्ट्रेंथ और वीकनेस फॉर द फर्म। अगर ये आपका कल्चर अच्छा है तो ये आपकी मेजर स्ट्रेंथ बनेगा, और अगर आपका ये कल्चर नहीं है तो ये आपकी वीकनेस बनेगी। ठीक, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए। हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो, the question is this, sir, please one example in the construction project। अब मैं इसमें construction project example भी दे सकता हूँ। फर्ज कीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि यू मस्ट गो एंड वॉच अगेन। आई एम ऑलवेज एग्जाम्पलीफाई द एक्सपेंशन ऑफ द मस्जिद नबवी। आप अगर यूट्यूब पे जाएं, गो ऑन द यूट्यूब एंड सी दैट हाउ दैट मस्जिद नबवी बीन एक्सपेंडेड। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, उसके अंदर सब प्रोजेक्ट आते रहे। तो उसमें आप अगर उसकी वीडियोस को, एक 2-3 घंटे की वीडियोस हैं, गौर से देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि किस तरीके से छोटी छोटी फर्म्स अपने प्रोजेक्ट लेकर इसके अंदर ऐड होती हैं, और बीच में बादशाह साहब आते हैं तो वो आके अपना प्लान चेंज कर देते हैं। तो वो प्लान जब चेंज होता है तो वो जो छोटी फर्म्स हैं, जो आपकी सब ऑर्डिनेट्स हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट जो फर्म्स हैं, सब कंस्ट्रक्शन जो आपने की हुई है, वो किस तरीके से अपना प्लान चेंज करती हैं। सो एक बहुत बड़ी एक बड़ी एग्जांपल है आपकी, एक लाइव आपका एक अगर आपने देखना है। बहरहाल एनीवे, if you remember that while in the construction of BRT, आपने देखा होगा कि देर वॉज अ सम टाइम ऑफ न्यूज़ कि भी बीआरटी में जो है ना वो उसकी जो टर्न्स हैं वो सही नहीं बनाए, या स्टेशन में वो अचानक ये चीज़ें सामने आने लगी। तो दीज आर द कार्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट्स ज़्यादा थे उसमें, अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी नहीं थी, लेकिन थ्रेट्स ज़्यादा थे उसमें कि यार अगर ये गाड़ी के हमने जो है ना वो मोड़ अगर सही नहीं बने, स्टेशन सही नहीं हुए, और बहुत सी चीज़ें हमने सामने में झगड़े में और उस तरह की चीज़ों में देखने को मिली। सो अगर आपकी जो बीआरटी बनाने वाली फर्म है वो इन चीज़ों से कोप अप करने की सलाहियत नहीं रखती, तो उसका मतलब है कि वो एक वीक ऑर्गेनाइजेशन होती। लेकिन उस बीआरटी ने उन मसाइल को कोप अप भी किया विद इन द रिसोर्सेज। इसका मतलब उस फर्म में उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो वक्त पड़ने पर इस तरह के आने वाले थ्रेट से मुकाबला कर सकते। सो इट मीन देयर स्ट्रॉन्ग फर्म। इसी तरीके से अगर आप देखें, इफ यू सी दैट द्यामिर भाषा डैम इज बीइंग इन 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 ऑपरेशन। अब द्यामिर भाषा डैम बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ी एक जो थ्रेट है वो क्या है, दैट इज हैविंग अ सफिशिएंट फाइनेंस। अब सफिशिएंट फाइनेंस के लिए ऑब्वियसली the former chief justice and the prime minister both have come on the screen, and they have started the marathon, financial marathon for raising the fund। सो अब ये फंड की रेज जो है वो तो पब्लिक की तरफ से भी हो रही है, लेकिन बहरहाल उस ठेकेदारों को, उन 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 कॉन्ट्रैक्टर्स को जो कि फाइनेंस डील करते हैं, दे हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स।
अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सोर्स ऑफ फंड अरेंज करने की कैपेबिलिटी है, इट मीन्स दैट फर्म इज हैविंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू कोप अप विद द फाइनेंशियल, जो अगर आपका उसका एक बैकलैश आता है, तो क्या वो बैकलैश, फाइनेंशियल बैकलैश को मीट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज रखती है कि नहीं? बट इफ दोज कॉन्ट्रैक्टर्स डू हैव सफिशिएंट सोर्सेज, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छी और बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग फर्म होगी. बट इफ एनी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर हु इज डीलिंग विद द फाइनेंशियल रिसोर्स फंड्स, but they do not have sufficient fund sources for that financial backlash, it means that contractor is a weak organization. तो इसको इस तरीके से आप जो है आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं. सर, इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सिमिलर टू द एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर? बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं ना आपके एंटरप्राइज के, जो आप पढ़ते हो, ये उसमें ही से आपकी कल्चर बनता है. बिकॉज इन दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप जो है वो रिसोर्सेज की सारी बातें करते हैं ना. और इसी तरीके से सर दैट वाज इल प्लानिंग, नहीं, इसको हम इल प्लानिंग नहीं कह सकते. बिकॉज sometime let's say why I'm not telling it ill planned, कि sometime ऐसा होता है कि the organization may have sufficient resources, but अचानक एक मार्केट में एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी बड़े वास्ट उस पे आ जाती हैं कि वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं कि वो करंट कंडीशन को कोप अप करने के काबिल नहीं रहते, तो उसमें तो इल प्लानिंग तो ना हुई ना. जस्ट 1 मिनट, आई मस्ट टर्न ऑफ द माइक. अच्छा, 40 मिनट के बाद ये वीडियो ऑफ हो जाती है, तो मुझे ज़रा उधर देखना पड़ेगा कि 40 मिनट के बाद अगर ये ऑफ हो जाती है तो मैं फ़ौरन से पेशतर ही मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा, तो लिहाजा आप लोग कहीं जाइएगा नहीं. एनीवे, तो इट मे नॉट बी इल प्लान एंड इट मे ऑल्सो बी इल प्लान एज वेल. हाँ, हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट ना हो. द फर्म मे हैव नॉट सफिशिएंट रिसोर्सेज, बट द फर्म आर indulging it into that kind of a project, that kind of operation for which they don't have sufficient resources. So that is why it is ill planned. कि आपने रिसोर्सेज ना होते हुए, रिसोर्सेज कंपैटिबल ना होते हुए ऐसी ऑपरेशंस में आपने हाथ क्यों डाला, या आपने ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट क्यों किया? सो दैट इज़ योर वीकनेस. सो अगर आपका प्लान अच्छा होगा, if the project is not ill planned, then obviously that kind of a project must be having a good integrating strategy and culture. तो ये चीज़ें होती हैं. एंड बट व्हाट कास्टेड एडिशनली टू द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीआरटी. यस, ऑब्वियसली सवाल अच्छा इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की इल प्लानिंग करता है, तो उसकी वजह से, इल प्लानिंग की वजह से कास्ट समटाइम डुप्लीकेट हो जाती है, कास्ट डबल हो जाती है. तो ये चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की एक तो नाकामी में भी शुमार की जाती हैं. दूसरा आपका होता है एक रिस्क एनालिसिस होता है. रिस्क एनालिसिस आपने, आप या तो पढ़ रहे होगे या आप आगे जाके पढ़ोगे. एक होता है रिस्क एनालिसिस होता है. रिस्क एनालिसिस में आपने इन चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में लाना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क वी में, जिसको हम थ्रेट कह रहे हैं ना, आप इसको थ्रेट कहो, आप इसको रिस्क कहो. सो दैट्स व्हाई यू मस्ट बी हैविंग अ प्लान ऑफ थ्रेट एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस, कि आपके पास पॉसिबल एक रिस्क की लिस्ट होनी चाहिए. वो आपने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा कि आपके पास एक रिस्क की लिस्ट होती है, उसके हिसाब से फिर आप अपने एक कंटिजेंसी फंड्स भी रखते हैं. कंटिजेंसी का नाम इसीलिए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई कंटिजेंसी फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं. कंटिजेंसी फंड्स होते ही इसीलिए है कि कहीं पर काम आपका डबल हो जाए, कहीं पर काम आपका डिले हो जाए, कहीं पर आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगे. सो फॉर दैट काइंड ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, फॉर दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ वर्क, डू वी हैव सफिशिएंट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और फंड? तो ये होना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ में जाता है. बट इफ एनी फर्म, एनी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्शन फर्म, if they do not have any kind of what we are saying that a contingency plan. So if firm is not having contingency plan, if firm is not having contingency funds, so it means that the firm is a weak firm. So that's why everything should be planned, everything should be
इन द साइट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि दैट प्रोजेक्ट मैनेजर इज विल नॉट बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि सरप्राइज हो जाए. मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहे कि ओ, हाउ दैट हैपन. तो अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ये जुमला कहते कि हाउ दैट हैपन, इट मीन्स दैट दैट प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. ही हैज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फार sightedness. And one person was stakeholders political excessive interference, so that is a sort of a threat, that is sort of a risk. आप चूंकि बार बार इसको पॉलिटिकल फेजेस पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है आपके ज़्यादातर आपके पब्लिक प्रोजेक्ट्स में. ये होता है कि आपकी एक्सेसिव जो है वो इन्वेंशन होती है आपकी पब्लिक अथॉरिटी की. तो ये तो आपकी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक आपके पब्लिक प्रोजेक्ट का एक रिस्क फैक्टर मौजूद है. सो आप जितने देख लें आपके पब्लिक प्रोजेक्ट, व्हाई ओनली वी आर टेकिंग बीआरटी, जस्ट टेक अ मोटरवे, जस्ट टेक एनी अदर अपना बिलियन ट्री सुनामी, दानिश स्कूल काइंड सिस्टम, दो अपना सस्ती रोटी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स व्हाई दे हैव नॉट बीन सो सक्सेसफुल, बिकॉज too much interference of the political authorities. Anyway, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. राइट नाउ हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल ऑडिट से, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हमने इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को क्लासिफाई करना है. जिस तरह हमने लास्ट क्लास में एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को क्लासिफाई किया, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इसको भी क्लासिफाई करना है. और हमें इसकी एक और हेल्प कहाँ मिलेगी कि हमें अपने स्टेटमेंट ऑफ मिशन को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है. बहरहाल externally we have done in the last class, and today I'll be giving you some more guidance for your last assignment, and as well as we will see that what kind of internal threats, internal strengths and internal weaknesses that firm might have. तो ये हमारा नेचर होगा इंटरनल ऑडिट का. Anyway, I'm coming again to my that list. We have get idea about resource based view. आई थिंक इसमें कोई अब सवाल मजीद अगर है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ, बिकॉज रिसोर्स बेस्ड व्यू हमने कर लिया और साथ के साथ मैंने इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटेजी एंड कल्चर भी बात कर ली. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट पर, बिकॉज ऑब्वियसली इफ वी आर लुकिंग फॉर द इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरनल वीकनेस, it means that we are looking towards about those internal resources which are making firm strong, and those internal resources we are making firm weak. So ये हमने करना है और उसमें पहला जो स्टेप है दैट इज ऑफ मैनेजमेंट साइड. सो मैनेजमेंट साइड में क्या चीज़ है, इफ यू रिमेंबर दैट द मैनेजमेंट इज बेसिकली डील्स विद द 5 these basic function. The management obviously plan, management organize, management motivates, management staff and management control. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट वाइल टॉकिंग अबाउट द strategic management phase, I have mentioned you the 3 stages. One was the strategy formulation stage, other was the strategy implementation stage, and the third was the strategy evaluation stage. And you can see that while thinking about the strategic planning and to see the internal strengths and internal weakness of the organization, so there are some sort of information which is helpful in the strategy formulation stage. These 3, organizing, motivating, and staffing, these 3 functions would be helpful in the strategy implementation stage, and the 5th one, which is controlling factor, that would be helpful in the strategy evaluation stage. Okay. How this organization planning would be helpful in the strategy
formulation stage, and how internal strengths and weakness is being defined by this planning phase. So just look up look carefully. Planning consists of the all those managerial activities related to the preparing for the firm future. Specific tasks included forecasting, establishing objectives, devising strategies, developing policies, and setting goals. Now, just focus on these issues, including forecasting. If firm forecast accurately, it will be making a strength for the firm. Is if firm is establishing objective accurately and wisely, any organization who has established its objective in clear statements, who have established their objective in a very much meaningful manner, it would be a strength of the firm. If we are devising strategies wisely, if we are devising strategies prudently, it will be creating a strength for the organization. If I'm developing policies through proper channel, through some very sophisticated manner, so it would be creating a strength for us. And similarly, if I'm setting goals appropriately, it would be creating a strength for us. But on the other side, on the other side, unfortunately, if a firm cannot forecast, if firm cannot establish objectives in the clear statements, if firm is fail to devising strategies appropriately, if firm is failed to make policy through proper some organized manner, or if firm is fail to setting goals of the organization, that would creating Hanji. Okay, I was talking that if the firm is weak in these areas, they cannot forecast accurately, they cannot establish objective in the clear term, they cannot devise strategies in proper manner, they cannot devise policies in what the SOPs are there. And similarly, if they cannot set goals appropriately. So if firm is having any kind of lacking in any kind of issues there, the firm would be obviously making its weakness stronger. Weakness stronger, अपनी कमजोरी को ज्यादा कर रही होगी. सो लिहाजा ये चीज़ें हमें समझना बड़ा ज़रूरी है. नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है. ओके जी. सिमिलरली इन ऑर्गन, अच्छा ये तो हो गया फार्मूलेशन स्टेज पर आ गया कि आपने फार्मूलेशन स्टेज में ही ऐसी वीकनेस या स्ट्रेंथ बना ली हैं, तो फिर वो स्ट्रेंथ या वीकनेस आपकी आगे तक चले. बिकॉज what have you done in formulation stage, that would be obviously transmitted into further stages as well. If you have created strong basis in this stage, the firm would be working in strong footings. But if you have made some weaknesses on the basis, so firm would be obviously running in the weak footings. So ये हमें पहले से इसका अंदाजा करना बड़ा ज़रूरी होता है. Similarly, in organization stage, if you see specific areas including organizational designing, job specification, you can see there, job specification, job specialization, job description, and the span of the control. Let me admit all other students. जॉब एनालिसिस. तो अगर हम यहाँ पे अगेन हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में कोई गलती कर जाते हैं, इफ मेक एन एरर, इफ मेक अ मिस्टेक in designing the job description, in job specialization, in job specification, इसका मतलब है कि हम अपने लिए कमजोरी, हम अपने लिए weakness create कर रहे हैं. But if we do all these function accurately, smartly, wisely, so it means that we are making our firm strong on the ground. Similarly, the motivating factors. What the motivating factors are? Motivating factors are human behavior, and it includes leadership,
communication, work group behavior, team work modification, delegation of authority, job enrichment, job satisfaction need, fulfillment, and organizational change, and employee morale and managerial morale. ये चीज़ें इस वक्त बनाने की हैं अगर आप इन चीज़ों को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, if you get success in doing these things, these functions accurately, smartly, wisely, successfully, you are making your firm stronger, you are making your strengths. But unfortunately, if you are not doing good in these areas, तो उसका मतलब है कि आप अपनी फर्म के लिए वीकनेस क्रिएट कर रहे हैं. यही चीज आप स्टाफिंग में लेके चले जाओ. If staffing activities are centered on the personal or human resources management, including what? Wage, salary, employee benefits, interviewing, hiring, firing, training, management, develop, employee safety, affirmative actions, equal employment opportunities, union relations, career development, personal research, discipline policies, grievance procedures. अब मुझे बताइए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें मौजूद हैं, इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है, इट मीन्स दैट यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. बट अनफॉर्चुनेटली इफ योर ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग इन समवेयर, कि सर जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे प्रोजेक्ट में तो सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये चीजें आपके लिए कमजोरी क्रिएट करती हैं. That makes weakness for you. Similarly, in the last function of the management, that is controlling. Now, what is controlling factor is? The areas in the controlling factors are क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल. अभी हमने जो पहले बात की, सवाल का जवाब मैंने दिया कि भाई डू वी हैव एनी फाइनेंशियल डोनर्स और नॉट. तो अगर मेरे पास फाइनेंशियल डोनर नहीं है, इसका मतलब फाइनेंशियल मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को. इट इज माई वीकनेस. सेल्स कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर मेरे कंट्रोल अच्छे नहीं है, इट मीन्स दैट आई एम वीक इन दिस एरियाज. बट इफ आई एम डूइंग स्मार्टली इन दीज एरियाज, इट मीन्स दैट आई एम हैविंग सम स्ट्रेंथ्स आउट ऑफ दीज. अब इन तमाम चीजों को समझने के बाद जरा अपने जहन में दो तरह के कंपैरिजन कीजिए. वन, द लोकल फर्म वेयर यू आर वर्किंग, एंड सम मल्टीनेशनल फर्म जिसके लिए आप ख्वाब देखते हो, जिसके लिए आप ड्रीम करते हो. आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लो. आप खुद सोचिए, all of you, I think 90% of you would be dreaming to move that organization which have better structure than your current organization. So why you are planning, or why you are having a dream to switch your current organization into other organization? It means that other organization is having more strengths than your current organization. तो ये स्ट्रेंथ्स आपकी जो हैं वो आपके मार्केट में प्रिवेल करती हैं. वीकनेस आपके मार्केट में आपका नाम या आपका रेप्यूट कम करती हैं. व्हाई यू आर प्लानिंग टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन? सो लीविंग करंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ फेलियर ऑफ द फर्म. इट इज अ नेगेटिव इमेज ऑफ द फर्म. तो इसको आपको सोचना चाहिए कि क्या आप अपनी फॉर्मुलेशन स्टेज पर, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर, इवैल्यूएशन स्टेज पर, क्या वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बना गए हो जिस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी. और अगर आपने इन स्टेजेस में अपनी वीकनेस क्रिएट कर ली हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आगे आपकी वीकनेस जो है आपको बड़ा सफर करेगी. एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड यू मे आस्क राइट नाउ. अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है. हो सकता है कि हमारे 2 से 3 लेक्चर इस चैप्टर पे जाएंगे. तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है. सो अगर आपका कोई सवाल इस स्लाइड से मुतालिक है, इफ़ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. इसका मैं जवाब आपको यकीनन दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. नाउ की इंटरनल फोर्सेस. अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने इसमें मैनेजमेंट साइड में देख लिया कि मैनेजमेंट साइड में कौन सी हमें स्ट्रेंथ्स आ सकती हैं और कौन सी हमारे पास वीकनेसेस आ सकती हैं. सो देयर आर सो मैनी. आई कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टेंस ऑफ आउट ऑफ दिस स्लाइड कि जहाँ पे मेरी किसी फर्म की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सामने आ सकती हैं. एनीवे,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज जो अभी मैंने आपको कहा कि व्हाई आर यू ड्रीमिंग that to switch from your current organization to other organization, because other organization does have some distinctive competencies. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं, तभी आप उसको ज्वाइन करने की बात करते हो। क्या कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं? यकीनन उसका सैलरी पैकेज अच्छा होगा, उसकी फ्रिंज बेनिफिट्स अच्छे होंगे, दे मस्ट बी हैविंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, दे मस्ट बी हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, दे मस्ट बी हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग मोर। सो ये सारी कॉम्पिटेटिव एंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज है ना, एडवांटेजेस है ना आपके, जो कि आपको अपील करते हैं, जो कि आपके एम्प्लॉइज को अपील करते हैं। इसी तरीके से कंपटीटर भी अपील होता है। वाई आर ऑल ऑफ यू आर लुकिंग टू बाई सैमसंग फोन एज कम्पेयर टू द ओप्पो? चूंकि कंपैरिजन जब करने आओगे तो ऑब्वियसली यू विल बी कंपेयरिंग सम गुड पॉइंट्स, कि ओप्पो में ये बैटरी कमजोर होती है, ओप्पो की बैटरी ज्यादा चलती है, ये वीकनेस होगी आपकी उस प्रोडक्ट की। Why are you going to the Samsung, and why are you surpassing that Samsung going to Apple और iPhone? iPhone आप ड्रीम क्यों करते हो? बिकॉज आईफोन में आप वो तमाम चीजें परसीव करते हो जो कि आप समझते हो कि वो जो कि नहीं है सैमसंग में, नहीं है किसी और ब्रांड में। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर गोइंग टू, अब ये तो मैंने जो बात की कस्टमर वाली, ये तो खैर आपकी वो एक्सटर्नल फोर्सेज में आएगी। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल फोर्सेज की। इंटरनल फोर्सेज ऑब्वियसली दे आर इंटरनल रिसोर्सेज, एंड इसके लिए बेहतर एग्जांपल यही है कि एक बंदा जो है, ये एक एम्प्लॉय जो है, व्हाई ही इज गोइंग टू स्विच हिज जॉब फ्रॉम वर करंट ऑर्गेनाइजेशन टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्हीं स्ट्रेंथ्स की वजह से होता है। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस क्या है? उसमें मैंने आपको कहा कि उसमें मैनेजमेंट है, मार्केटिंग एरियाज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन है। मैनेजमेंट में हमने थोड़ा सा देख लिया कि हमारे पास कौन सी इश्यूज हो सकते हैं, व्हाट माइट बी द इश्यूज इन द मैनेजमेंट। आई हैव टोल्ड यू इन दीज देयर आर सो मच इश्यूज इन द प्लानिंग साइड, देयर सो मच इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, इन मोटिवेशन, इन स्टाफिंग, इन कंट्रोलिंग। आई हैव पिन पॉइंट दोज इश्यूज, यू कैन काउंट देम अप इन फिंगर टिप्स। कोई 4-5 इधर हैं, 5-6 इधर हैं, 4-5 इधर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट साइड पर आपकी आ जाती हैं। देन the second area of the internal organization which can create considerable differences in the strengths and in weaknesses, that is marketing one. So management में और marketing में अब क्या issues हैं जरा देखिएगा प्लीज। अब मैनेजमेंट की जो ऑडिट चेकलिस्ट एंड क्वेश्चंस है, इसको जरा थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, इसको समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट दिस चेकलिस्ट इज, अभी जिस तरह मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, उसमें से इन्होंने सिर्फ 9 को सामने रखा है। 9 9 9। हालांकि मैंने आपको इस डायग्राम में आई हैव टोल्ड यू अबाउट, जस्ट काउंट देम अप, फोरकास्टिंग 1, एस्टैब्लिशिंग प्रोजेक्ट 2, डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज 3, डेवलपिंग पॉलिसीज 4, सेटिंग गोल्स 5, और इस तरीके से इधर भी होंगे 5-6, इधर भी 5। तो ये कुल मिलाकर कोई 25-30-40 पॉइंट्स तो होंगे इसके अंदर। बट हेयर इन द मैनेजमेंट यू हैव जस्ट ओनली मेंशन 9। इसका मतलब है कि लिस्ट 9 तक महदूद नहीं है। दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड टू दिस 9 क्वेश्चन ओनली। आई हैव जस्ट मेंशन द 9। You can make so many similar type of question, almost about 40 question you can make out of that slide. Now what are these question? इसको सिर्फ पढ़ लीजिए कि does the firm use strategic management process concept? क्या आपकी फर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझती है, यूज करती है? देखा ना मैंने कहां से उठाया, मैंने इधर से कहीं से उठाया। ये एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज, यहां से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि डज माय फर्म इज हैविंग सेंस ऑफ दीज डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज। ये मैंने पहला क्वेश्चन बना लिया। आर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स मेजरेबल एंड वेल कम्युनिकेटेड। ये बात मैंने कहां से उठाई, ये मैंने बात यहां से उठाई। फ्रॉम हियर आई हैव पिक्ड द क्वेश्चन एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन इन चीजों को उठा के सवालात बनाए
क्वेश्चंस रेज किए हैं, आई हैव एस्टैब्लिश सम क्वेश्चंस अबाउट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन and I've just limited these questions to 9. You can make 40 questions. You can make hundreds of questions of your own management side. So second question is, are company objectives, goals are measurable and well communicated? Do managers at all hierarchical level plan effectively? क्या आपकी मैनेजर जो है वो प्लान को इफेक्टिवली और hierarchical मैनर में बनाते हैं कि आपका एक प्लान बड़ा प्लान बने, फिर उसके बाद छोटा प्लान आए, वो छोटा प्लान फिर मजीद डिस्ट्रीब्यूट हो? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं? डू मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी वेल? क्या मैनेजर अपनी अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट? क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है? क्या उसकी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है? क्या उसको स्टाफ अच्छा मिला हुआ है? क्या उसको स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप है? उसमें अच्छे और सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफिसर्स मौजूद हैं? और जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर? क्या हर एक एम्प्लॉय को अपने काम जो करना है उसका पता है? क्या उसको जिस काम के लिए रखा गया उसका उसको मालूम है? इज एम्प्लॉय मोरल हाई? क्या लोगों के जो मोरल है वो हाई? अब सवाल इस तरह के मैंने 9 बनाए हैं. यू कैन मेक 40-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन फ्रॉम योर मैनेजमेंट. अब करना क्या है इसका? इससे हमने रिजल्ट क्या निकलेगा? द मेन थिंग, अगर आपको इन सब सवालों का जवाब फेवर में दिखाई दे, यस यस डू वी हैव, यस वी हैव, यस वी हैव, इसका मतलब है कि योर फर्म इज मेकिंग योर स्ट्रेंथ्स, your firm is having a strength. If my managers delegate authority well, yes, it means this is a strength for an organization. Yes, my employee morale is high, it is a strength for my organization. Yes, my employees turnover and absenteeism is low, this is my strength. But if the answer of all these questions are in no, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी ये सारी की सारी क्या होंगी? इसका मतलब आपकी वीकनेसेस हैं. सवाल यहाँ पे आया है कि इफ वी टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट देन द प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 5 एक्टिविटीज. यस, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव 2 काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप. वन इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड वन इज वीक स्ट्रक्चर. वी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वो होता है कि जहां पर आपका मैनेजर इज फुली ऑथराइज्ड. अगर आपका फुली ऑथराइज मैनेजर है तो तब तो ये सारी जिम्मेदारी मैनेजर की आती है. बट समवेयर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट फुली ऑथराइज्ड, आपका सिंबॉलिक मैनेजर होता है, मतलब उसको रिसोर्सेज ऊपर से मिल रहे हैं, उसको रिसोर्सेज कहीं और से आ रहे हैं, वो फैसले नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट टेक इट. आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ये तमाम जिम्मेदारी तभी ले सकता है कि जब उसको इसके लिए अथॉरिटी डेलीगेट की जाए. एक और सवाल यहाँ पर आया कि डेलीगेटिंग अथॉरिटी, कि आपको इतना अख्तियार दिया जाए कि आप फैसले भी करें और उन फैसलों के बाद उन पर अमल भी करें. तो अगर आपको फैसलों का अख्तियार दे दिया गया है तो उसका मतलब द अथॉरिटी इज बीइंग डेलीगेटेड. लेकिन अगर आपका मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट बीइंग डेलीगेटेड अथॉरिटी, उसको स्टाफ रखने का अख्तियार नहीं है, तो जब उसको स्टाफ रखने का अख्तियार नहीं है तो अच्छी स्किल्स आना, ट्रेनिंग देना, ये सब वो कैसे कर सकता है? The question is that the difference between the firm and organization. My dear, firm and organization at the time I am taking at the same. मैं फिलहाल फर्म और ऑर्गेनाइजेशन को सेम ले रहा हूँ. ठीक है, दो के इसका टेक्निकल मीनिंग अलग होती है. ऑल द फर्म्स आर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल ऑर्गेनाइजेशन नॉट द फर्म्स. क्योंकि फर्म का जो लफ्ज है वो पर्टिकुलरली टेक्निकली उस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल होता है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो. तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम फर्म कह सकते हैं. लेकिन जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फिर वो फर्म नहीं है. ईधी ईधी फाउंडेशन इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट फर्म. शौकत खानम इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन बट इज नॉट अ फर्म बिकॉज प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है. अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूट द ऑर्डर टू योर सबऑर्डिनेट. बिल्कुल यही उसने लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात की है, यही उसने लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात की है जो कि हमने ऊपर पढ़ा. यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा मैं बताया तो आपको, ये भी सवालों में देख रहा था. यहाँ पे हायरार्किकल लेवल, डू मैनेजर एट ऑल हायरार्किकल लेवल प्लान एफर्ट्स. तो ये आपने यही सवाल किया है कि क्या आपका मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है, उनको
एक तरीके से डायरेक्ट करता है कि नहीं करता। तो ये चीज़ें अगर आपकी हैं अच्छा, व्हाट डज एम्प्लॉय टर्नओवर मीन? एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स दैट employees when leave organization, so how much frequently your employees are leaving organization, so that make employee turnover. If your organization or if the employees are very frequently leaving your organization, बंदा आता है 2-4 महीने काम करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है, लोग आते हैं 5-6 महीने काम करते हैं फिर फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब इट मीन्स दैट एम्प्लॉइज टर्नओवर इज वेरी हाई। सो व्हाई एम्प्लॉई लीव्स ऑर्गेनाइजेशन? एक अच्छा एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ेगा? इसका मतलब उस सिस्टम में देयर आर सम फ्लॉज, उस सिस्टम में देयर आर सम वीकनेसेस जो कि एम्प्लॉई को सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वीकनेस। Okay, who can do these evaluation? For example, delegation of authority to PM is proper or the PM is not authorized. Unfortunately आपका जो ऑडिटर है, अब देखेंगे जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अब सवाल इन्होंने ये किया है कि ये कौन बनाएगा, ये कौन चेक करेगा कि भी प्रोजेक्ट मैनेजर आपका अथॉरिटेटिव है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखें कि समटाइम होती है कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारा तालीमी इदारा है तो उसकी रेगुलेटरी एजेंसी है HEC। तो HEC की तरफ से एक ऑडिट टीम आती है, तो वो देखती है कि आपके यहाँ पर लोगों को अथॉरिटी अवेलेबल है कि नहीं, तो वो उसको एनालाइज करती है, रैंकिंग की जाती है। लेकिन मसला ये है अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्राइवेट जो इदारे हैं, जो प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, उसमें इस तरह की अगर कोई और कह सकते हैं ना कि रेगुलेटरी एजेंसी अथॉरिटी है तब तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है तो फिर उसमें ये चीज़ जो है, अब मिसाल प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब प्राइवेट स्कूल का एक प्राइवेट टीचर, उस बेचारे को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना उसका लोड है, या सपोज वो कितना लोड, इसका कोई अथॉरिटी ऐसे है नहीं, तो है नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो ये स्कूल जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक। अच्छा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेक्टरिस्टिक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेक्टरिस्टिक्स? देखिए मैनेजमेंट जो है ना, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ, मैनेजमेंट हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, जो आपकी बॉडीज होती हैं वो मैनेजमेंट होती हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज आर कॉल्ड मैनेजमेंट। जबकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट भाई आपकी स्ट्रैटेजी बनाने का, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म क्या है, तो इसको हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। एंड ऑडिट मीन्स, ऑडिट का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से मुहासबा जिसे कहते हैं, कि आप किसी जगह बैठ जाओ और देखो कि यार मैंने क्या खोया क्या पाया, और क्या मेरे अर्निंग में और क्या मेरे एक्सपेंसेस में कोई लैक, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इस अमल को हम ऑडिट कहते हैं, इसको मुहासबा उर्दू में कहते हैं। ठीक हो गया, तो उसको ऑडिट कहते हैं। और इसके अलावा सवाल आया है सर, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस प्रोजेक्ट, PM इज मेंट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट। अच्छा देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक। आपकी प्रोजेक्ट में जो आपका जो एक बंदा है वो है, जो लीडर है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसको सिंपल मैनेजर कह सकते हो, फील्ड मैनेजर होता है, स्टाफ मैनेजर होता है, आपका कंट्री मैनेजर होता है, आपका सेल्स मैनेजर होता है, आपका डिवीजन मैनेजर हो सकता है। सो इट माइट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच सॉर्ट ऑफ डेजिग्नेशन। तो ये तो खैर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना चलता है। Sir, in 9 question we should determine strength and weakness points. Yes. जिस तरह मैंने आपको कहा कि I have just made here only 9 question. You can make 40 questions आउट ऑफ दैट स्लाइड, जो मैंने ऊपर आपके मैनेजमेंट वाली, इसमें से आप 40 से ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन असल काम क्या है इन क्वेश्चंस का? हेयर वी विल बी डिसाइडिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर इस तमाम के तमाम सवालों के जवाब यस में आ गए तो मतलब मैं 9 जगहों पर स्ट्रांग हूँ। अगर इन तमाम सवालों के जवाब मेरे पास नो में आ गए, इफ ऑल दीज 9 questions गिविंग मी द आंसर एज नो, इट मींस देयर आर 9 areas वेयर आई एम वीक। तो इसमें से कहीं पर मेरे सवाल का जवाब यस होगा, कहीं पर सवाल का जवाब मेरा नो होगा। तो जहां पर मैं यस हूं वहां पर मैं स्ट्रांग हूं, वेयर आई एम हैविंग नो वहां पर मैं वीक हूं। अभी मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा फिलहाल, तो मैं बाद में लेके चलूंगा आपकी असाइनमेंट, क्योंकि ये 2-3 वीक्स तक चलेगी ये चैप्टर, तो हमारी असाइनमेंट ज़रा थोड़ी सी लंबी है। अभी आप मुझे असाइनमेंट सारी मुझे एक मत भेजा करें, आप इसको अपने पास जमा करें, ठीक है ना।
मिड टर्म से पहले जब आपकी सारी असाइनमेंट इकट्ठी हो जाए तो फिर आप उसको एक ही फाइल में मुझे एक दफ़ा सेंड करेंगे, ठीक है ना? आप मुझे ये बार बार सेंड ना करें, बिकॉज इसमें मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि मैं 40 असाइनमेंट जो है ना वीकली में आपकी डाउनलोड करके उनको पढ़ूंगा। आप इसको अपने साथ रखें, जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ आप अपने असाइनमेंट में ऐड करते चले जाएं, और एट द टाइम जब आपने भेजना हो मिड टर्म से पहले तो फिर वो आप मुझे एक ही फाइल आप भेजेंगे सारी असाइनमेंट की, ठीक हो गया? जिसके अंदर फिर आप बता दें कि असाइनमेंट नंबर 1 ये थी, नंबर 2 ये थी, नंबर ये 3 ये थी। ओके। सो ये हो गया। और अच्छा, अब ये मार्केटिंग एरिया है, यहाँ पे इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैनेजमेंट तक ही काफ़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा भी रोज़ा है और मुझे भी थोड़ा सा एक वो चाहिए, बिकॉज मेरा अब गला जो है वो तकरीबन बिल्कुल जो है वो पकड़ा जा चुका है। ओके, आगे है। थैंक यू सर, गॉट इट। कैन एम्प्लॉइज टर्नओवर बी टर्न्ड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? सवाल आया है कि एम्प्लॉइज टर्नओवर बी टर्म्ड एज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टर्नओवर ऐसा नहीं, एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है आपके मुलाजिमीन का ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है। जो जिस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज होती है, उसको हम एम्प्लॉय टर्नओवर ये एम्प्लॉय टर्नओवर है। ये जो आप बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर होता है, ठीक है ना? वो चीज़ ये नहीं है। अच्छा, दूसरा है कंटिन्यू टू दी अनदर स्लाइड। सर ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे? ये क्वेश्चन बस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। ये अगली स्लाइड मार्केटिंग की है। मैंने मार्केटिंग तक, मैंने मैनेजमेंट सिर्फ 9 को एक्सप्लेन किया है। बाकी मैंने कहा कि आप 40 क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इवैल्यूएट। ऑडिट में इवैल्यूएशन ही की जाती है। ऑडिट ऑडिट इज सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है ना? ऑडिट इज अ सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन। और इसके बाद है सर एक्सप्लेन हायरार्किकल। हायरार्किकल कहते हैं दर्जा बंदी। मतलब ऊपर से फिर मतलब है कि ऑफिसर है, ऑफिसर का सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट के नीचे, तो ये दर्जा बंदी जो होती है इसको हम हायरार्की कहते हैं। राइट सर, डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इवैल्यूएशन बताया मैंने आपको। थैंक यू सर। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट असाइनमेंट, मैं आपको वो बता देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच सर। यूज इंग्लिश लैंग्वेज। आई ट्राइड माई बेस्ट टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली, बट इन द एंड जो है देखें ना, हम जितने भी इंग्लिश पढ़ लें लेकिन जब जज्बात में आते हैं ना तो अपनी ज़बान भी आ जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे जितने भी इंग्लिश में लेक्चर शुरू कर लूँ, लेकिन जब जज्बाती हो तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश पे आऊँगा, उर्दू पे आ जाऊँगा, और फिर बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे तो फिर मैं अपनी मदर टंग पे आ जाऊँगा। ऑब्वियसली यू नो दैट। फिर जब हम जो है ना बहुत जज्बाती होने का मतलब, हम जब हम हार्श हो जाते हैं, जब हम गुस्से में आ जाते हैं ना, तो फिर हम